And the question is, explain concept of retarded potential and show that both scalar and vector potentials satisfy inhomogeneous equations. Now, let us first understand what do you mean by retarded potential. Here we will discuss about the time varying potentials. Both phi and A are time varying, and then we come at the approach of retarded potential and retarded time. Now you see this figure. Here nearby distance, here is some substance, or let me say antenna. Okay, here is a dV dash volume element. There is a change in charge or change in charge density at the distance r prime. Okay, now at very far distance, here is a point P. Okay, at point P, now observer can see the change in the potential or change in the charge density. Okay, at distance r. The position vector is r here of point P, and position vector of this volume element is r prime. Now the distance between this volume element to the very far away point, it is r equal to r minus r prime. Okay, this is very far distance. Now what will happen? Observer observing the change in potential or value of potential at point P. What will happen here? Potential seen at point P must have been launched earlier at time t dash is called retarded potential. यहाँ जो ऑब्जर्वर कोई भी पोटेंशियल या कोई भी चार्ज डेंसिटी ऑब्जर्व करता है तो क्या होता है? इट मस्ट हैव बीन लॉन्च एट अर्लियर टाइम. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड रिटार्डेड पोटेंशियल. पहले से ही लॉन्च किया गया हुआ पोटेंशियल है यहाँ आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं, एंड दिस टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रिटार्डेड टाइम. So what is the value of retarded time? Retarded time t prime equal to t minus r by c. Okay, r is the distance, c is the velocity of light. Okay, so phenomena observed at point P at time t. Okay, actually the change in potential or potential at point P must have been launched at earlier time t dash. The value of t dash equal to t minus r by c. ये r by c है बिकॉज ये जो वैल्यू है लाइट को ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस तक पास करने में टाइम लगेगा. वो कितना टाइम लगेगा? वो r by c जितना टाइम लगेगा. r is the distance divided by c is the velocity of light. Distance divided by velocity equal to time. ओके, सो इतना टाइम ज्यादा लगेगा. ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं मिलेगी हमको, अर्लियर वैल्यू मिलेगी इधर. सो पोटेंशियल सीन एट पॉइंट पी मस्ट हैव बीन लॉन्च्ड एट अर्लियर टाइम. ये यहाँ हम जो कुछ भी देख सकते हैं वो एक टी समय की वैल्यू नहीं होगी, बट टी डेज समय की वैल्यू है. ये हम यहाँ देख सकते हैं और देखने को मिलेंगी. इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? रिटार्डेड पोटेंशियल बोलेंगे, और उस टाइम को क्या बोलेंगे? रिटार्डेड टाइम बोलेंगे. ओके, सो इस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? फाई इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम. यहाँ आपको जो पोटेंशियल मिलेगा एट टी डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर आपको, और टी टाइम पर वो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वॉल्यूम एलिमेंट. रो इज ए फंक्शन ऑफ आर डैश, रो इज ए फंक्शन ऑफ आर प्राइम. ओके, एंड ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टी प्राइम. ये टी नहीं है, ये क्या है? टी प्राइम है. ये रिटार्डेड टाइम है बिकॉज वैल्यू ऑफ रो ओके मस्ट हैव बीन लॉन्च अर्लियर टाइम. ओके, व्हेन यू ऑब्जर्व एट टाइम टी. ओके, डिवाइडेड बाय आर एंड वॉल्यूम एलिमेंट. व्हाट इज टी प्राइम? टी प्राइम इक्वल टू टी माइनस आर बाई सी. हम बाद में उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे. इस तरह से वेक्टर पोटेंशियल म्यू 0/4 पाई j is a function of r prime comma t prime dv divided by r, where t prime equal to t minus r by c. Okay, so इसको हम retarded time बोलेंगे. So when
whenever we discuss about time varying field, I mean electric field is time varying, magnetic field also time varying, we should consider the concept of retarded potential and retarded time for very far distance. Okay, so these are the time varying electric field, these are the time varying magnetic field. E depending on phi and A, B depending on vector potential. Okay, so in homogeneous equation for phi and A are given by Laplacian of phi 1 upon c square del square phi by del t square equal to minus rho divided by epsilon 0. Equation number 3. Laplacian of A minus 1 upon c square del square A by del t square equal to minus mu 0 into j. So these are both inhomogeneous equation, time dependent equation. Okay, time varying equation for retarded potential. सपोज ये रिटार्डेड इक्वेशन है, रिटार्डेड पोटेंशियल वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हम सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, अनुमान करेंगे इसका. सपोज सॉल्यूशन इज phi इक्वल टू so and so, देन वी विल डबली डिफरेंशिएट इट, प्लेस द वैल्यू ऑफ दिस एंड वी विल गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. देन हम लोग बोलेंगे कि हम लोग सही है इसके सॉल्यूशन में, अदरवाइज नॉट. इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं, फिगर तो वही है, आर प्राइम वाली है, आर इक्वल टू आर प्राइम पी सो एंड सो. ओके, नाउ फॉर स्टेडी स्टेट डेल बाय डेल टी टर्म विल बी इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 हो गया. सो लाप्लासियन ऑफ phi इक्वल टू माइनस रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. इसी तरह से लाप्लासियन ऑफ ए इक्वल टू माइनस म्यू 0 इनटू जे. स्टेडी स्टेट के लिए ये तो सही है डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर. और देखते हैं सॉल्यूशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स आर. ओके, इसका जो सॉल्यूशन है उसको हम लगाएंगे स्टेडी स्टेट के लिए, तो यही मिलेगा हमको. पहले तो ये तो मालूम है, फाई इज अ फंक्शन ऑफ आर, नज़दीक वाले डिस्टेंस पर, ये नज़दीक वाला डिस्टेंस है, फार डिस्टेंस नहीं है. ओके, फाई आर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, रो इज अ फंक्शन ऑफ आर प्राइम डी वी आर. इसी तरह से ये भी सॉल्यूशन हमको मिला, म्यू 0 4 पाई जे आर प्राइम आर डी वी. 7 and 8 आर द इक्वेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर स्टेडी स्टेट. ये हम जानते हैं, इसके चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन वी हैव टू कंसर्न विथ फॉर टाइम वेरिंग फील्ड. ओके, सो फॉर टाइम वेरिंग कंडीशन द फील्ड ऑब्जर्वेड एट टी मस्ट हैव बीन लॉन्च अर्लियर एट टाइम टी डेज इज कॉल्ड रिटार्डेड टाइम. हमने पहले आपको बता दिया. ओके, पहले जो पोटेंशियल लॉन्च हो चुका है किस टाइम पर, टी डेज टाइम पर, जो हम टी टाइम पर पी बिंदु पर ऑब्जर्व करते हैं, उस पोटेंशियल को हम रिटार्डेड पोटेंशियल बोलेंगे, और उस टाइम को हम टी डेज टाइम को हम रिटार्डेड टाइम बोलेंगे. सो टी डेज इक्वल टू टी माइनस आर सी. तो वही वाला इक्वेशन जो हमने पहले दिया था, वही वाला इक्वेशन हम लिखते हैं रिटार्डेड पोटेंशियल के लिए. ओके, और टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल के लिए और टाइम वेरिंग पोटेंशियल के लिए. फाई आर टी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, रो इज अ फंक्शन ऑफ आर डेज कोमा टी डेज, और टी प्राइम इक्वल टू टी माइनस आर बाई सी डी वी आर. सिमिलरली वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू हम लिख देंगे. इक्वेशन 10 and 11 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइम वेरिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर रिटार्डेड पोटेंशियल लाइक दिस. ओके, ये हमने सपोज किया. सपोज दिस आर द सॉल्यूशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड. ओके, और टाइम वेरिंग कंडीशन, दिस आर द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस आर द सॉल्यूशन. ये जो सॉल्यूशन सही है, ओके, उस पर हम जो भी प्रोसेस करेंगे और हमें ये मिलेगा इक्वेशन नंबर 3, तो ये रिटार्डेड पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट है हमारा, वो सही है, अदरवाइज हम गलत है, ये प्रूव होगा. चलो देखते हैं क्या होता है. इक्वेशन 10 and 11 आर कॉल्ड रिटार्डेड पोटेंशियल. ये हमें मालूम है, अभी हमने चर्चा की. वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ 10 and 11 कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ओके, तो ये वाला जो सॉल्यूशन है फाई को हम 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे. एक तो नज़दीक वाला पार्ट, और बाद में फार अवे डिस्टेंस. सपोज ये अंधर गैलेक्सी वाला है, अंधर प्लेनेट वाला ये पॉइंट है, ये नज़दीक वाला पार्ट है. ओके, ये बहुत दूर वाला पार्ट है. तो फाई इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2, इसी तरह से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये सॉल्यूशन को. क्लियर. लेट अस सी, देखते हैं कैसे हुआ. नाउ यू सी,
फर्स्ट इज ए स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r0 वेयर r प्राइम बाई c इज निग्लिजिबल एंड पोटेंशियल इज phi1। नजदीक वाला डिस्टेंस पर पोटेंशियल है उसको हम phi1 बोलेंगे। सेकंड रीजन इज रेस्ट ऑफ द स्पेस वेयर पोटेंशियल इज phi2। ये वेरी फार रीजन वाला है, एट पॉइंट P वाला। ओके, सो पोटेंशियल इज गिवन बाय पोटेंशियल फॉर टाइम वेरिंग कंडीशन phi इक्वल टू phi1 प्लस phi2। इसका लाप्लासियन ले लेते हैं। सो लाप्लासियन phi इक्वल टू लाप्लासियन phi1 प्लस लाप्लासियन स्क्वायर डेल स्क्वायर phi2। ओके, नाउ फॉर नियर बाय रीजन हम r बाई सी को निगलेक्ट करेंगे तो वही वाला आएगा t माइनस r बाई सी इधर। ओके, सो r बाई सी को निगलेक्ट करेंगे तो रो r प्राइम और r t ओके डिवाइडेड बाय r वही मिलेगा हमको, ये इक्वेशन यही मिलेगा और दूसरा मिलने की संभावना ही नहीं है, यही वाला है। ओके, सो phi1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रो r प्राइम t माइनस r बाई सी r प्राइम बाई सी और r बाई सी जो भी हम है तो उसको क्या करेंगे हम लोग निगलेक्ट करेंगे, इसको हम निगलेक्ट करेंगे। सो ये वाला इक्वेशन मिलेगा। सो एट पॉइंट P, ये नजदीक वाला पॉइंट की बात करते हैं, ये नजदीक वाला ये यहाँ। ओके, यहाँ r बाई सी हम निगलेक्ट कर सकते हैं, r बाई सी हम निगलेक्ट करते हैं। सो हमको सिर्फ यही वाला इक्वेशन मिलेगा। ओके, ये t माइनस r बाई सी हमने निगलेक्ट कर दिया। सो Laplacian of phi equal to divergence of gradient of phi. What is gradient of phi? Grad phi equal to minus e. Okay, so equal to minus delta dot e मिला हमको। Laplacian of phi1 equal to minus divergence of e, but divergence of e equal to rho by epsilon 0. Okay, वे हमें मिला। So इसकी वैल्यू हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, डाइवर्जेंस ऑफ इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन 0 और माइनस साइन तो है ही इधर। सो लाप्लासियन ऑफ phi1 इक्वल टू माइनस रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 14। सो ये वाली वैल्यू हमको मिली, ये दोनों, ये लाप्लासियन ऑफ phi है। फर्स्ट नियर बाय रीजन उसकी कीमत कितनी मिली, उसकी वैल्यू वे ऑफ 100 माइनस रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। अब दूर वाले डिस्टेंस पर की जो वैल्यू है हमको फाइंड आउट करनी है। लेट अस सी, देखते हैं क्या मिलता है हमको। सो दूर वाली कीमत पर हम r बाई सी को निगलेक्ट नहीं करते। वाई इट इज सो, बिकॉज इट इज t माइनस r बाई सी, इट इज t डेज और t प्राइम इट इज रिटार्डेड टाइम। सो रो इज अ फंक्शन ऑफ r प्राइम t प्राइम। ओके, सो phi2 ऑब्जर्वेशन ऑफ phi2 पोटेंशियल एट टाइम t। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 v r प्राइम t प्राइम t माइनस r बाई सी r, इसको r बोलेंगे, r प्राइम करने की कोई जरूरत नहीं, इसको कैपिटल R को dv। क्लियर? ओके, सो हम क्या करते हैं अभी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, लाप्लासियन ऑफ phi2 इक्वल टू डेल स्क्वायर phi2 डेल r स्क्वायर, लाप्लासियन इक्वल टू डेल बाय डेल r, सॉरी डेल इक्वल टू डेल बाय डेल r। ओके, और लाप्लासियन इक्वल टू डेल स्क्वायर बाय डेल r स्क्वायर, ये ऑपरेटर है। किसके पर आपात हुआ, इंसिडेंट हुआ, phi2 के ऊपर, तो डेल स्क्वायर phi2 डिवाइडेड बाय डेल r स्क्वायर। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ phi2, ये phi2 की जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू अंदर इंट्रोड्यूस करो। लाप्लासियन ऑफ phi2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ओके, ये डेल स्क्वायर बाय डेल r स्क्वायर इंटीग्रल के अंदर लगा दो, इंटीग्रल वाली वैल्यू बाहर रख दो, बिकॉज इंटीग्रल की ऑपरेटर है। ओके, डेल ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर, इसकी वैल्यू और इंटीग्रल की हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो कर दी हमने, देखो ये। ओके, ये वाला इक्वेशन हमको 15 मिला। अभी क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लेंगे और वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग द स्ट्रिंग लेंगे हम। क्या है, डेल स्क्वायर साई बाय डेल r स्क्वायर इक्वल टू 1/c स्क्वायर डेल स्क्वायर स्वाई बाय डेल f स्क्वायर डेल t स्क्वायर। मैंने f को साई इसलिए बोला कि ये वेव इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स वाला, या वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग द स्ट्रिंग है, आप लोग जानते हैं। डेल स्क्वायर साई बाय डेल r स्क्वायर इक्वल टू 1/c स्क्वायर डेल स्क्वायर स्वाई बाय डेल t स्क्वायर, ये श्रोडिंगर का इक्वेशन है और वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग द स्ट्रिंग है, आप लोग जानते हैं। तो साई की जगह मैंने f रख दिया। मगर ये इक्वेशन क्या कहते हैं हम लोगों को, यू कैन जंप फ्रॉम स्पेस कोऑर्डिनेट टू टाइम कोऑर्डिनेट, यू शुड मल्टीप्लाइड बाय 1/c स्क्वायर। ये श्रोडिंगर इक्वेशन या वेव इक्वेशन के ऊपर से हमको ये मालूम होता है। चलो कोई बात नहीं, ये डेल
स्क्वायर बाय डेल आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लग देंगे, डेल स्क्वायर बाय डेल आर स्क्वायर इक्वल टू ओके डेल स्क्वायर बाय डेल आर स्क्वायर इक्वल टू 1/c स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर रख देंगे हम लोग। क्लियर। सो लैप्लासियन ऑफ फाई टू 1/c स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर। ओके ये वैल्यू तो है ही। ओके 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ओके ये रो फंक्शन ऑफ आर प्राइम कोमा टी प्राइम और आर, ये तो हमारे पास है, ये टी प्राइम इज टी माइनस आर बाई सी, ये वैल्यू है ही। क्लियर, रख दिया। लेकिन आपको तो मालूम है क्वांटिटी इन ब्रैकेट इज फाई टू, ये क्वांटिटी इन ब्रैकेट इज इक्वल टू फाई टू, ये फाई टू क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी है, ये फाई टू है। दैट मीन्स लैप्लासियन ऑफ फाई टू इक्वल टू 1/c स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई बाय डेल टी स्क्वायर मिला। ओके चलो हम क्या करेंगे, हम ये लैप्लासियन ऑफ फाई इक्वल टू लैप्लासियन ऑफ फाई 1 माइनस रो बाय एप्सिलॉन 0 ये वैल्यू प्लस लैप्लासियन ऑफ फाई 2 ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों का क्या करेंगे, हम समेशन कर देंगे। ओके सो लैप्लासियन ऑफ फाई इक्वल टू लैप्लासियन ऑफ फाई 1 प्लस लैप्लासियन ऑफ फाई 2 इक्वल टू माइनस रो डिवाइडेड बाय लैप्लासियन ऑफ फाई इक्वल टू माइनस रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 प्लस 1/c स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई बाय डेल टी स्क्वायर। आप इसी को इधर ले जावे, ओके लेफ्ट हैंड साइड में। सो लैप्लासियन ऑफ फाई इक्वल टू माइनस 1/c स्क्वायर लैप्लासियन ऑफ फाई बाय डेल स्क्वायर फाई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। सो लैप्लासियन ऑफ फाई माइनस 1/c स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन 0। ये क्या है, अगेन इट इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 3, ये वाला इक्वेशन नंबर 3 मिला, ये वाला इक्वेशन नंबर 3, ये दिस इक्वेशन। क्लियर, ये इक्वेशन हमको मिला। सो इन दिस वे वी कैन अप्लाई ओके concept of retarded potential, okay so solution of 10 is solution of equation 3 and phi and E are called retarded potential, and we fulfill this question, okay both phi and A satisfied in homogeneous equation. When phi and A are time varying, okay we can obtain the value of retarded potential. Thank you very much.